Hello, Assalamu alaikum to all the participants. May I start? Yeah, let me start, sir. Yeah, let me start. I'm starting. Zoya, shall we start this session? Yes, we can start. Okay. I hope a recording has been started. Yeah, it is. Okay, Assalamu alaikum, everyone. This is Hamza. I hope you people are enjoying learning on Coursera platform, and thank you very much for joining this session as well. With time to time, we are going to organize different sessions for you people pertaining to different subject-wise areas, domains. Last time, what we did in the first cohort, हमने different webinars arrange किए थे different domain base पे, freelancing पे, कुछ digital marketing पे, different हमने वेबिनार्स किए और स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया कि आप किन किन डोमेन्स में जा सकते हैं और वहाँ से आप स्किल्स ले सकते हैं विद सर्टिफिकेशंस. So the purpose of today's session is to this is basically the first session, subject wise session. First हमारा session है, and we have a chief guest with us, a guest speaker as well, engineer मोहम्मद नुमान अली खान, Amazon Web Services Academy instructor है ये, and sir जो है तो he's professor at Sir Syed University of Engineering Technology and director CCPE department. So sir Numan is going to tell you about the AWS cloud, brief detail about the cloud and what it is and how you can excel your career with AWS cloud and how you can get certification और किस तरह आपको वो certifications help out कर सकते हैं in future जाके professional career में या freelancing में या different field में जाके. So over to you, Sir Numan. आप start कर सकते हैं session. Thank you very much. Thank you for joining as well, sir. Thanks. Thank you, Hamza. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all the participants. Let me introduce myself. I am working as Director Center of Continuing Professional Education at Sir Syed University, and as a CPOC for the Amazon Web Services Academy of Sir Syed University, and instructor and trainer of AWS Academy. So today, I just give you the introduction regarding the different courses and trainings offered at AWS Academy, and especially the data-driven world, which is now, we can say every company is moving towards the data-oriented decision-making process, and the success of companies lies in the data information, and the current, you can say that proceedings of the real world is dependent on the AI, machine learning, and data analytics. So, Bismillahirrahmanirrahim, let's start. First of all, Sir Syed University CEP department in collaboration with AWS Academy. We are the member institution of AWS Academy, and I like to thanks to HEC to provide me the platform, and Coursera also for the digital learning platform. So first, if we see the last you can say last decade or almost the last century, we have observed a drastic change in terms of automobile sector, that we are in the evolution phase from steam vehicles to combustion vehicle, and then gasoline diesel vehicles come in 20th century, and in 21st century we observed electrical vehicle, and now we are moving towards the automated self-driving cars and different kind of different shapes and different designs of cars. Like you here you can see that the automated cars which are in the production and commercially available within years, which are self-driving and dependent on the data which is available in terms of Google Maps and Google Drive. So similarly, the technological advancement is happening on the side of IT. Like in the automobile sector, we have observed in IT sector, you can see here that the changes from the servers, we see the infrastructure
on-premises infrastructure in various companies in terms of racks and mounted systems with a lot of investment from the company side. And we observe in our daily life in various institutions and in various companies, these data centers are present. So world moved towards the virtualization. Initially, we got the virtual machines and we make hypervisor based implementation. We process different kind of applications on different virtual machines. So on one machine, we can create another machine, like on Windows machine, we can run the Linux platform, Linux operating system or Mac operating system in a separate virtual machine. So we create separate machines over a single machine. And then the further evolution comes in terms of containers, Dockers, and Kubernetes. And we see now that the complete infrastructure is dependent on the application-based specific containerization. In containerization, different applications have their you can say that separate environment in which they can control the environment variables and the functionality of the application, and got the results as per requirement of the application. Functional or non-functional requirements can be fulfilled easily, and the whole bunch of applications we observed in our, let's suppose if you are using Microsoft Azure or you are using Google, so you see that those applications are mounted in a Docker, and all those applications you observe in your mailbox also, that you can open Microsoft Office, Excel, Word, and different applications which are hosted in the same platform. So that is actually a platform as a service. In terms of Dockerization and containerization, we execute different applications. Now further evolution take place and we are moving towards the function as a service. The AWS, Sir, yes. Sis, I'm really sorry for interrupting you. Can you please check your chat box? I just messaged you on Zoom. Could you please check that? Yes, can we communicate in Urdu? Student prefer. Okay, no problem. Okay, thank you, sir. No issue. अच्छा, कंटेनराइजेशन की जहां मैं बात कर रहा हूं, तो कंटेनराइजेशन के अंदर आपको जैसे यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एजूर के अंदर देखते हैं तो आपकी एक साइट में आप जब ओपन करते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशन, तकरीबन 12 से 15 एप्लीकेशन आपके पास एक्सेसिबल होती हैं विद द सिंगल इंटरफेस। वो एक्चुअली क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जब हम प्लेटफॉर्म, अभी हम देखते हैं कि IaaS और PaaS और SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इन सब में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे आपको डॉकर से हम वो सर्विसेज को तमाम, जैसे हम एक टर्मिनल पे जाते हैं और वहां पे मुख्तलिफ किश्तियां लग रही होती हैं जो आप पोर्ट कासिम पे या KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट पे ऑब्जर्व करते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन डॉक हुई हुई होती हैं डॉकर पे, और डॉकर का प्लेटफॉर्म जो है वो एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन की एनवायरमेंट सपोर्ट करता है। इसके बाद जो हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आया 2011 में, वो था फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस जो कि लैम्डा फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया, ये भी AWS की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि AWS बेसिकली पायनियर है क्लाउड के अंदर। 2006 में सबसे पहला क्लाउड जो दुनिया में बना वो AWS की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, और AWS ने बेसिकली वो मुख्तलिफ कंपनीज को ऑफर किया इनिशियली, और उसके बाद बाकी तमाम कॉम्पिटिटर्स माइक्रोसॉफ्ट और IBM और दूसरे ओरेकल, ट्रेसेंट और अलीबाबा और डिफरेंट क्लाउड, गूगल क्लाउड, मुख्तलिफ क्लाउड्स मार्केट में आए। लेकिन अभी भी जो टॉप शेयर है 68% मार्केट शेयर, वो AWS के पास है। तो फंक्शन एज अ सर्विस, फिर लैम्डा का कॉन्सेप्ट आ गया जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है बहुत सारी एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप जब रिसोर्स शेयरिंग कर रहे होते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ साथ मल्टीपल फंक्शंस को आप जब सर्विस के तौर पे दे रहे होते हैं, तो आपकी ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन होती है और बहुत ज्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस वक्त जो हम मूव कर रहे हैं वो अगर हम यूनिवर्सली देखें तो हर चीज डेटा जनरेट कर रही है। इस वक्त आप ग्लोबली देखें तो IoT का कॉन्सेप्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट, फिर तमाम गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर से जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो इस वक्त इंटेलिजेंट व्हीकल्स हो गए। व्हीकल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन हो रही है। एक व्हीकल को पता है कि ट्रैफिक लाइट इस वक्त जो आगे आ रही है उसको क्या स्टेटस है और कितनी देर में वो ग्रीन होगी। तो ये सारी कम्युनिकेशन, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, तो हमारी रिक्वायरमेंट डेटा की और उसकी प्रोसेसिंग की बढ़ती जा रही है। अब ये डेटा जा कहाँ रहा है, ये डेटा जा रहा है क्लाउड पे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है आपकी V2X, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, ये पूरी क्लाउड के ऊपर काम कर रही है, और इसमें तमाम सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो क्लाउड के ऊपर जा रही है। चाहे वो आपका CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की आपकी माउंटिंग्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, इवन बिल्डिंग्स का स्टेटस, उनके अंदर भी सेंसर्स लगे हुए हैं कि वाइब्रेशन आ रही है, अर्थक्वेक आ रही है, तो उनकी तमाम डाटा जो है वो क्लाउड पे जा रहा है, और क्लाउड जो है उसको
प्रोसेस करते हुए आपको रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं मजीद आपको बताऊं तो डेटा हमें इस वक्त जो हमारा फ्यूचर विजन है वो बढ़ता जा रहा है कि हम चाह रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स हों और उसमें तमाम चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही हों। तो ये ऑटोमेशन का प्रोसेस किस वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू द क्लाउड। तो हम गूगल मैप रोजाना यूज करते हैं, हम उबर, करीम और मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये सब बेसिकली डाटा कहाँ से ले रही होती है? डाटा हंग्री एप्लीकेशन है। ये डाटा कहाँ से ले रही है? डाटा क्लाउड से ले रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई डाटा की प्रॉपर मैनेजमेंट ओवर द क्लाउड। तो आज का जो मेरा एजेंडा है वो बेसिकली डाटा मैनेजमेंट ही है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किस तरीके से रेवोल्यूशन हो रही है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर फील्ड के अंदर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है डाटा की, कि डाटा प्रॉपरली हैंडल किया जाए, उसको स्टोर किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। और उसको जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है, हम डेटाबेस से आगे निकल चुके हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि डाटा वेयर हाउसेज, डाटा लेक्स और डिफरेंट आपके पास डाटा मैशेस। तो उसमें किस तरीके से डाटा को हम प्रॉपरली प्रिजर्व कर सकते हैं और उससे हम रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको AR VR MR की मुख्तलिफ एप्लीकेशन, मिक्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन मिल जाती हैं। इस वक्त जो है वो अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आपके सर्जन जो हैं वो टेली ऑपरेशंस कर रहे हैं, पेशेंट रीजन में कहीं और है दुनिया में, और वहां पे रोबोट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो पूरा बेसिकली किस पे जा रहा है? आपका क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी एक डेंसली पॉपुलेटेड फुटबॉल या सॉकर ग्राउंड की या किसी हॉकी स्टेडियम की, तो वहां पे हर कोई अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इतना डाटा की पॉपुलेशन और वो सब क्लाउड पे जा रही है, और उसके साथ साथ उनकी इंफॉर्मेशन, उस पे स्टेटस, उसके लाइक डिसलाइक, सब चीजें जो बेसिकली मैनेज हो रही हैं वो डाटा की क्लाउड के ऊपर है। तो क्लाउड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं? इट इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर पावर, डेटाबेस, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन। अब ये जो रिक्वायरमेंट है कि हमें फिजिकल कंप्यूटर नहीं रखना, कंप्यूटिंग पावर हमारी क्लाउड पे होगी। स्टोरेज, डेटा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेटाबेस की स्टोरेज क्लाउड के ऊपर होगी। जितनी भी हमारी स्टोरेज मैकेनिज्म, हमारी यूएसपी, हमारी हार्ड ड्राइव, ये सब चीजें कहाँ चली गई? क्लाउड पे चली गई। तो हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। फिर एप्लीकेशंस, कि अब क्लाउड के जो डेवलपर है वो डेवलपर मुख्तलिफ एप्लीकेशन बनाएगा, और वो एप्लीकेशन मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ डोमेन, जो हमारी फंक्शनल फील्ड्स हैं, चाहे हमारी एजुकेशन इस वक्त देख लें हम, ऑनलाइन कोविड के दौरान ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, या कोर्सेरा का पूरा प्लेटफॉर्म देख लें आप, तो लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या हो गया? डिजिटाइज हो गया। और क्लाउड की वजह से ही ये फैसिलिटेशन हमें अवेलेबल है कि हम वो एप्लीकेशन कोर्सेरा की रन करते हैं और उस पर हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज का एक्सेस हो जाता है। वहाँ क्विजेज होते हैं, वहाँ सारी एवोल्यूशन होती है, असेसमेंट होती है और प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, अब इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो इंटरनेट है उसकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। लेकिन सबसे बेहतरीन क्लाउड ने क्या चीज दी आपको? मॉडल दिया पेमेंट का, वो था यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल हम क्यों कहते हैं? पे एज यू गो प्राइसिंग, यानी कि जितना यूज करेंगे उतना ही बेसिकली आपको पे करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटेशन जो है वो नॉर्मल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, एक डाटा सेंटर बना देते हैं आप, 10-15 कंप्यूटर्स ले लेते हैं, तो वो फिर आपके डेप्रिसिएशन होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी रिकवरी जो है वो 100% हो। तो पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट, अगर आपने 1 मिनट के लिए यूज किया, आधे घंटे के लिए यूज किया, जितनी देर मशीन आपने ऑन की, जितना डाटा आपने यूज किया, उसी के हिसाब से, जैसे आप नॉर्मल यूटिलिटी बिजली और गैस की बिल आता है, इसी तरीके से आपको बिलिंग होती है क्लाउड के ऊपर। अभी जो क्लाउड सर्विसेज मॉडल है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसी तरीके से सबसे बेसिक मॉडल जो 2006 में AWS ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट, वो था IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या था कि कंट्रोल जो था, जब हम कहते हैं मोर कंट्रोल ओवर IT रिसोर्सेज, यानी कि आपका कंट्रोल रिसोर्सेज पे था कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखना चाह रहे हैं, आप अपनी सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं सिस्टम के ऊपर। तो उसे हम कहते हैं, सिर्फ आपने मशीन ले ली, वो मशीन जैसे आप कंप्यूटर नया परचेज करते हैं, इस तरीके से आपने एक कंप्यूटर ले लिया, एक राउटर ले लिया, एक स्विच ले लिया, वो आपने डिवाइस लिया, हार्डवेयर, उस पर क्या रखना है, किस तरीके से रखना है, उसको फॉर्मेट करके आपने कितने सेक्टर्स बनाने हैं, वो सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है। तो आपके पास कंट्रोल है उसका। जब हम प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या हुआ? कंट्रोल आपका कम हो जाता है, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का ले रहे हैं, अगर आप Amazon का ले रहे हैं, तो वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है उसका कंट्रोल बढ़ जाता है। तो आपकी फर्दर हम जाते हैं, अगर सैस की बात करें तो सैस में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, सिर्फ आपके कंट्रोल में क्या रहता है? आपके कंट्रोल में सिर्फ डाटा रहता है, और बाकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डाटा किस तरीके से स्टोर होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा, मैनिपुलेट होगा, वो सारी जिम्मेदारी कौन मैनेज कर रहा है? वो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। तो ये जो 3 डिफरेंट सर्विसेज मॉडल हैं, वो यूज करते हुए हम मुख्तलिफ तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम था हमारा, ऑन प्रेमिसेस IT इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास
सर्वर रूम होता था और सर्वर रूम में एक डाटा सेंटर होता था जिसमें मुख्तलिफ मशीन्स जो थी वो सब चीजें हमारे कंट्रोल में थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोकल डाटा सेंटर के अंदर नेटवर्क, स्टोरेज, फिजिकल सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एप्लीकेशन डाटा, ये सब चीजें किसके कंट्रोल में थी? एक डायरेक्टर आईटी या आईटी मैनेजर के कंट्रोल में थी। और वो लोकली 24/7 आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, आपको कूलिंग की फैसिलिटी देनी पड़ती थी। अगर हीट अप हो जाती थी, मशीन डैमेज हो जाती थी, तो वो सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी थी। जब आप को लोकेशन में चले गए तो को लोकेशन में आपने क्या किया? ये सबसे पहला मॉडल था जो कि एडब्ल्यूएस ने प्रोवाइड किया कि डेटा सेंटर आप हमारे दे दें, क्योंकि इतनी ज्यादा 24/7 हम कूलिंग कर ही रहे हैं। तो अगर हम 6 लोगों के दरमियान शेयर कर देंगे रिसोर्स को, और हमारे जो रैक्स लगे हुए हैं उनमें जो सिस्टम लगे हुए हैं उन सबकी शेयरिंग हो जाएगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसके बाद फिर फैसिलिटी उन्होंने होस्टिंग की दी। जैसे आज GoDaddy जो है वो एडब्ल्यूएस की सर्विस यूज करते हुए पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है। GoDaddy का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे उबर और करीम जो है वो अपनी कोई कार नहीं रखते। इसी तरीके से आईटी के अंदर नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स किसको यूज कर रहा है? एडब्ल्यूएस को यूज कर रहा है। फैसिलिटी वो अपनी दे रहा है, सर्विस अपनी दे रहा है, लेकिन उसकी होस्टिंग फैसिलिटी कौन दे रहा है? एडब्ल्यूएस दे रहा है। इसके बाद फिर हमारे पास आईएएस आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये सबसे पहला जो मॉडल एडब्ल्यूएस ने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो फर्दर मैच्योर हुआ इनटू द वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन मैंने अभी बता दिया कि एक ही मशीन के ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल आपने इन्वायरमेंट्स क्रिएट करनी है। तो वर्चुअल मशीन्स आपने क्रिएट करना शुरू करी। फिर उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज कर दिया, यानी कि अगर मुझे मैक की बुक, मैकबुक चाहिए। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि Amazon सिर्फ वो क्लाउड है जो कि आपको वर्चुअल मशीन देता है मैकबुक की। बाकी अभी तक माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे गूगल क्लाउड जो है वो Amazon के अलावा कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर मैकबुक की वर्चुअल मशीन नहीं दे रहा। तो इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डेटाबेसेस, एप्लीकेशन, डाटा। अब ये जो ऊपर की दो चीजें हैं, डाटा और एप्लीकेशन, ये सिर्फ यूजर के कंट्रोल में रह गई, एंड यूजर के। और बाकी तमाम चीजें किसने ले ली? Amazon ने अपने हाथ में ले ली कि डेटाबेस भी मैं आपको मैनेज करके दूंगा। अब ये डेटाबेस मैनेज करने का मतलब क्या हो गया? आप Oracle यूज करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर यूज करेंगे, आप साइबेस यूज करें, आप पोस्टग्री यूज करें, आप मारियाडीबी यूज करें, आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, वो डेटाबेस को मैनेज करना क्या होता था? आपको उसको अपडेट करना पड़ता था, उसको पैच करना पड़ता था, उसकी तमाम उसकी हेल्थ को चेक करना पड़ता था। अब ये मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? एडब्ल्यूएस कर रहा है। जब एडब्ल्यूएस मॉनिटरिंग कर रहा है तो उस सूरत में आपका हेडिक कम हो गया। आपकी सिर्फ क्या कंसंट्रेशन एज ए डेवलपर, एज ए एंड यूजर, आपका सिर्फ कंसर्न क्या हो गया? डेटा। और अगर डेवलपर है तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटाबेस की हैंडलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम की हैंडलिंग, ये सारी चीजें जो थी वो एडब्ल्यूएस ने या दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर ने अपने हाथ में ले ली। इसके बाद आ जाते हैं सैस की तरफ। तो सैस में क्या हुआ कि सिर्फ डेटा यूजर का है। आप अपनी ईमेल रखते हैं, अपनी ड्राइव पे इमेजेस रखते हैं, कंटेंट्स रखते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी ड्रॉप बॉक्स है, आपकी जो है वो मेल ड्राइव है। तो सैस के अंदर सिर्फ आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एज अ सर्विस। बाकी तमाम चीजें मैनेज कौन कर रहा है? वो डेटा जाता कहाँ है? वो डेटा पाकिस्तान में तो कोई डेटा सेंटर नहीं है एडब्ल्यूएस का, तो डेटा कहाँ चला गया? या माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ चला गया? दुनिया के किसी डेटा सेंटर में चला गया जो कि रिमोटेडली प्रेजेंट है। आपका डेटा जो है वो उनके पास है। आपने सिर्फ डेटा प्रोड्यूस करना है, डेटा को अरेंज करना है, वो आपकी कंट्रोल में है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर। फर्दर अगर हम देखें तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में सबसे पहले क्या आता है? पब्लिक क्लाउड, देन हाइब्रिड क्लाउड, और फिर ऑन प्रेमिसेस क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड जो कि पब्लिकली सबको अवेलेबल है, सब उसको यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि अभी हमने पीछे देखा कि ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास भी है, जैसे बैंक है। अब बैंक कहता है मैं अपनी ये कंटेंट्स तो मेरे प्राइवेट है, मैं इसको क्लाउड पे नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है? हाइब्रिड क्लाउड मॉडल की तरफ चला जाता है। कुछ सर्विसेज क्लाउड की नहीं, बाकी अपनी लोकल जो उसकी सर्विसेज हैं अपने हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस तक की, वो सारी उसने हाइब्रिड फॉर्म में कंटिन्यू करी। ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड, यानी कि अगर जैसे मैं अपनी कॉर्पोरेशन के अंदर, अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर सेपरेटली अपना क्लाउड डेवलप करता हूँ और उसी पे मैं वर्किंग करवाना चाहता हूँ, तो वो ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड का मॉडल आपका यूज होता है। जैसे अभी कम्युनिटी क्लाउड भी है बहुत से, जैसे आपकी यूके में और दूसरे मुल्क में हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स आपस में कनेक्ट होते हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टारगेट ओरिएंटेड डिजाइन ऑफ द क्लाउड, के वो आपस में वो डाटा शेयर कर सकते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। तो वो तमाम पैरामेडिकल स्टाफ देख सकता है, या सिर्फ जो उस क्लाउड के यूजर हैं, तो उसको हम कम्युनिटी क्लाउड का मॉडल भी कंसीडर करते हैं। अमेजोन के हवाले से अब ये क्लाउड तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक जो है वो क्लाउड को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करी है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडेबिलिटी जनरेट कर दूं। इसके बाद अगर हम में जाते हैं स्पेसिफिकली अमेजोन की तरफ, तो अमेजोन बेसिकली आपने बहुत से नाम सुने होंगे अमेजोन की प्रोडक्ट्स के, यूज भी करी होंगी कहीं ना कहीं। तो अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। इवन जैसे नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स अमेजोन का ही क्लाउड यूज कर रहा है मेजर, और
Amazon ने अपना सॉल्यूशन भी बना दिया प्राइम के नाम से। इसी तरीके से Amazon का अपने हर एरिया में, यूट्यूब के मुकाबले में ट्विच उनका एक अपना एप्लीकेशन है जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो स्टोरेज के हवाले से। AWS क्लाउड के कॉम्पिटिटर गूगल और एज्योर, ये मुख्तलिफ क्लाउड्स हैं। इसी तरीके से आपका Amazon की प्रोडक्ट्स ये इनर सर्कल के अंदर आपको नजर आ रही हैं, और एक्सटर्नल सर्कल के ऊपर आपको जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स के तौर पर। तो Amazon को आप कह सकते हैं कि मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने एलेक्सा, और दूसरी जो एलेक्सा फॉर बिजनेस, एलेक्सा फॉर होम, ये मुख्तलिफ अमेजोन के इस वक्त शॉपिंग सेंटर जितने चल रहे हैं अमेजोन गो के नाम से, वो सारे जो हैं बेसिकली इसी क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं। इस वक्त अगर हम कंपटीशन देखें मुख्तलिफ क्लाउड प्रोवाइडर्स में, तो एट टॉप जो इस वक्त लीडर है वो अमेजोन वेब सर्विसेज है विद द 68% मार्केट शेयर। सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, देन गूगल, देन अलीबाबा एंड अदर क्लाउड्स आर प्रेजेंट। अच्छा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि जब हम इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, और उन रीजन्स के अंदर हम फिर ज्योग्राफिकल रीजन्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में। और ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि रिडंडेंसी को हम मैनेज कर सकें। जहां रिडंडेंसी आती है, वो रिडंडेंसी हमेशा किस लिए होती है? फॉल्ट टॉलरेंस के हिसाब से, कि अगर एक पॉइंट फेल होगा, एक लिंक फेल होगा, एक डिवाइस फेल होगी, तो उसका बैकअप हमारे पास मौजूद हो। तो AWS ऑलवेज वर्क विद द रिडंडेंट मॉडल, हर चीज को रिडंडेंसी के साथ प्लेस करना। और यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे इसकी बैकअप, हमेशा हर चीज की बैकअप रखना, हर चीज को जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, इवन अल्टरनेट सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी, और आपके पास मुख्तलिफ किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो AWS ने इस तरीके से डिजाइन करी है। इसकी एक स्पेशल सर्टिफिकेशन भी AWS ऑफर करता है जो कि कहलाती है EOT, इलेक्ट्रीशियन ऑपरेशन एंड टेक्नीशियंस फॉर डेटा सेंटर्स। कि डेटा सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये स्पेशल सर्टिफिकेशन करवाते हैं, और उसके बाद वो टेक्निकल, जैसे अभी बहरीन में बना है डेटा सेंटर, बहुत से जो है वो डेटा सेंटर अंडर द डिप्लॉयमेंट फेस है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स जो हैं वो एक्सटेंसिव ग्लोबल फुटप्रिंट्स उसके मिलते हैं आपको। जैसे मैंने बताया 68% मार्केट शेयर, यानी कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त बिग 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं वो AWS क्लाउड को यूज कर रही हैं। इसमें आपके पास जो है वो उसकी सिक्योरिटी, ऑब्वियसली क्लाउड पे सबसे ज्यादा लोगों का कंसर्न होता है, तो सिक्योरिटी का एक शेयर्ड मॉडल AWS ने दिया है, और उस शेयर्ड मॉडल के तहत उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर पे डाली और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखी, और उसकी वजह से जो है वो सक्सेसफुल है। पाकिस्तान के करीब करीब अगर हम रीजन को देखें तो इस वक्त बहरीन है, बॉम्बे है, हैदराबाद रीजन है, ये हमारे करीब रीजन है। लेकिन ऑब्वियसली लेटेंसी जो है वो कुछ एप्लीकेशन में मैटर करती है। अगर आपने कॉस्ट देखनी है तो आप देखते हैं कि कहाँ किस रीजन के अंदर कॉस्ट जो है वो आपको सबसे कम मिल रही है, वहां पे आप होस्टिंग सर्विस दे सकते हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको, जैसे मैंने बताया, कि हर रीजन को हमने मजीद अवेलेबिलिटी जोन्स में डिवाइड किया, और AZ कहते हैं उसको। AZ के अंदर जो है ये कंप्लीट रिडंडेंसी मॉडल है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, एटलीस्ट 2 to 3 डेटा सेंटर्स लाजमी हर जो है वो आपके अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर हैं। और अवेलेबिलिटी जोन्स जो है कुछ किलोमीटर्स के फासले पे विद इन द रीजन होते हैं, और इसके अंदर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो सॉल्यूशंस हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेपरेट फैसिलिटी विद रिडंडेंट पावर, तो इसमें 2 से 3 किस्म की पावर सोर्सेज को उन्होंने कंसीडर किया हुआ होता है। एक तो नॉर्मल, जैसे हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, सोलर, और आपके पास बैकअप बैटरी, मुख्तलिफ किस्म की आपके पास पावर सोर्सेज के थ्रू कि डेटा कभी भी डाउन टाइम ना आए। और AWS का डाउन टाइम जो है वो अब तक सबसे कम है इन टर्म्स ऑफ अदर डेटा सेंटर्स, विद इन द सेकेंड्स। नेटवर्क वो भी हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव में पर्पस बिल्ट, हाईली अवेलेबल एंड लो लेटेंसी नेटवर्क। इसका कोर नेटवर्क जो है वो 100 GB ई का है, और सबसे ज्यादा जो इसकी CDN की सर्विस है क्लाउड फ्रंट के हवाले से, कंटेंट डिलीवरी, जिसकी वजह से हमें फील नहीं होता, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, कि AWS यहाँ मौजूद नहीं है फिजिकली, लेकिन उसकी सर्विस जो है वो CDN की वजह से इतनी क्विकली आपको प्रोवाइड कर रही होती है। अभी भी हम अगर सर सैयद यूनिवर्सिटी की मैं एग्जाम्पल दूं तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है OBE के नाम से, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, वो भी बेसिकली AWS पे होस्ट हुई हुई है। आप पार्कव्हील यूज करते हैं, वो भी AWS पे होस्ट हुई हुई है। तो आपके पास AWS की एप्लीकेशन बहुत सी यूज हो रही है। अच्छा, अब ये उनका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो में आपको बताऊं तो 32 रीजन्स में उन्होंने पूरे दुनिया को डिवाइड कर दिया है, बल्कि इससे ये 32 रीजन्स वो हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा अभी जो रेड कलर के यहाँ पे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये रीजन्स अभी फर्दर यू कैन से दैट हर रीजन के अंदर 2 से 3 अवेलेबिलिटी जोन, और हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 2 से 3 डेटा सेंटर्स। तो इस तरह आपके पास टोटल नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन कितने हो गए? 102, 32
आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो एक अवेलेबिलिटी जोन, जैसे यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट जो मैंने अब आपको बताया 2006 में नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर सबसे पहले डेटा सेंटर बना था। तो 2006 के अंदर यहाँ आपको नजर आ रहा है कि अवेलेबिलिटी जोन्स कितने हैं। नॉर्थ वर्जीनिया में 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और हर अवेलेबिलिटी जोन में 3 डेटा सेंटर्स हैं। तो टोटल 18 डेटा सेंटर सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर एडब्ल्यूएस ने बनाए हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग। अच्छा, अब इसके अंदर आप फर्दर देखें तो 550 प्लस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो 550 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्यों बनाए गए हैं? ताकि आपकी जो एज सर्विसेज हैं, एज लोकेशंस को सर्विसेज दी जा सके, उसमें पीओपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर नीचे आप देखेंगे तो 35 लोकल जोन्स हैं। ये लोकल जोन्स क्या है? बेसिकली लोकल जोन्स हम वहां यूज करते हैं जहां हमें डेडिकेटेड प्रोसेसिंग करनी है। अगर मेरी अब पाकिस्तान में मैं कहूँ तो यहाँ पे जैसे हॉलीवुड है यूएस के अंदर वीडियो मेकिंग, मूवी मेकिंग के हवाले से, तो सिमिलरली लाहौर जो है वो हमारा कह सकते हैं कि हब है फॉर द वीडियो प्रोसेसिंग या मूवी मेकिंग। तो वो जो रीजन है लोकल जोन का, वो लोकल जोन डेडिकेटेडली होगा फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। अगर मैं कहूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है या कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो मेन फाइनेंशियल हब है, तो वहां पे जो स्पेशल जोन बनाया जाएगा वो डेडिकेटेडली फॉर दैट पर्पस। तो लोकल जोन दुनिया में मुख्तलिफ स्पेसिफिक टू द टास्क, वहाँ स्पेसिफिक मशीन्स लगाई जाती हैं, नाइट्रो मशीन्स, स्पेसिफिक टाइप की उनकी कॉन्फ़िगरेशन रखी जाती है ताकि वो प्रोसेसिंग को स्पीड अप कर सकें। 29 वेवलेंथ जोन्स हैं। वेवलेंथ जोन्स बेसिकली क्या है? आपका जो आप 5G और 6G के ऊपर वायरलेस डिप्लॉय, अभी हमने जैसे देखा कि एक हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसको बहुत ज्यादा लोगों को स्ट्रीमिंग की सर्विस चाहिए, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है? आपको वेवलेंथ जोन बनाना पड़ता है ताकि इतनी ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट है और डेटा हंग्री एप्लीकेशन चल रही हैं, तो वो आपको वायरलेस मीडिया के ऊपर जो है वो बैंडविड्थ को इंक्रीज करना पड़ता है। तो 29 इस वक्त वेवलेंथ जोन है और ये बड़ी तेजी से स्पीडली ग्रो कर रहे हैं जैसे जैसे हम 5G से 6G की तरफ मूव कर रहे हैं। 245 कंट्रीज को इस वक्त कवर किया हुआ है एडब्ल्यूएस ने और 115 डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन। डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन क्या है? बेसिकली लाइक जो हमारी आईएसडीएन कनेक्टिविटी होती है, डीएसएल कनेक्टिविटी, डायरेक्टली लिंक अप विद द एडब्ल्यूएस से ऑन प्रेम तक आपका एक केबल लगा हुआ है और उसके थ्रू आप लेटेंसी आपकी बहुत कम हो जाती है। ये बेसिकली जो है वो आपका डेटा सेंटर का इनर व्यू और आउटर व्यू मैंने आपको दिखाया। ये एक डेटा सेंटर है। अब आप खुद कंसीडर कर सकते हैं कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और कितनी ह्यूज जो है वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एडब्ल्यूएस ने डिप्लॉय किया है। ऐसा डेटा सेंटर, 3 डेटा सेंटर एक अवेलेबिलिटी जोन में और एक रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन। तो यू कैन सी दैट वन रीजन जो कि अभी हमने देखा 32 रीजन है, टोटल 115 अवेलेबिलिटी जोन थे, इन सब के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंटली प्रेजेंट है जहां पे आपका बेसिकली डेटा होस्ट हो रहा है या कंपनीज का डेटा प्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं अपनी एकेडमी की तरफ। तो सर सैयद जो है बेसिकली इसमें टोटल 20 डिफरेंट कोर्सेज एडब्ल्यूएस ऑफर करता है और स्पेसिफिकली आज जो हमारा टारगेट था वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थी टू द डेटा इंजीनियरिंग कोर्स। इसमें टोटल 13 मॉड्यूल्स हैं, जो 13 मॉड्यूल्स एजेंडा आइटम के अंदर मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। और ये हमारा बेसिकली इन 13 मॉड्यूल्स को मैं जस्ट गिव यू द बर्ड आई व्यू, क्योंकि ये पूरा 3 मंथ्स का बेसिकली कोर्स है। लेकिन ये कि इनिशियली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको आप फर्दर लर्न कर सकते हैं। कोर्सेरा पे भी अच्छे कोर्सेज एक दो हैं जो कि अभी मिस वातन ने भी शेयर किए थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, या दूसरे आपके पास डेटा लेक्स मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे जो एडब्ल्यूएस के अपने जिसे कहें कि इंडोर्स कोर्सेज हैं जो एडब्ल्यूएस एकेडमी ऑफर करती है, उसमें बेसिकली ये डेटा इंजीनियरिंग के नाम से कोर्स होता है जो कि डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के लिए जरूरी है कि हाउ टू मैनेज द डेटा इन द पर्टिकुलर प्रोसेसिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये उनकी इन्वायरमेंट जस्ट लाइक ऑन द कैनवस। कैनवस अगर आपने यूज किया एलएमएस जो मॉडल है उसी के ऊपर तमाम लेक्चर्स, वीडियोस और लैब भी आपके ऑनलाइन, क्योंकि लैब इसका कुछ सिमुलेटर यूज नहीं होता, आप लाइव डेटा सेंटर के अंदर एक्सेस करते हुए वो परफॉर्म करते हैं अपनी लैब। और जैसे यहाँ पे आपको लैब नजर आ रही होगी, एक्सेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा बाय यूजिंग Amazon S3। अब ये Amazon S3 क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस है। अच्छा, सिंपल स्टोरेज सर्विस लोग कहते हैं कि ये किस तरीके से स्टोरेज करती है? जैसे आपकी यूएसबी है, अब ये यूएसबी में आप डाटा लेके पोर्टेबल एक मशीन से दूसरी मशीन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो Amazon S3 है वो डिटैचेबल सर्विस है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह, ये आउट ऑफ द यू कैन से दैट योर वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बाहर एक रिसोर्स आपने ली है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करके अपनी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो लैब एक्सेसिंग, ये सबसे पहले आपने डेटा को कहाँ रखा है? S3 के ऊपर। S3 से एक्सेस किस तरीके से होगा? अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डेटा रखेंगे किस फॉर्म में?
डेटा को कॉम्प्रेस करके रखना है, डेटा को ओपन करके रखना है, किसी डेटाबेस के अंदर रखना है, डेटा वेयर हाउस के अंदर रखना है, तो उसके मुख्तलिफ आर्किटेक्चर फिर आ जाते हैं कि आपने आरडीएस की सर्विस यूज करनी है, एडब्ल्यूएस मैनेज सर्विस यूज करनी है, आपने रेडशिफ्ट डेटा वेयर हाउस यूज करना है, या आपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस अरोरा आपका डायनेमो डीबी यूज करना है, तो या डेटा लेक्स के ऊपर काम करना है, या डेटा मैश क्रिएट करना है। तो वो सारी चीजें फिर आगे की इसमें डेटा इंजीनियरिंग के हवाले से आपको बताई जाती हैं कि वॉल्यूम ऑफ डेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी प्रोसेसिंग, कि आपने इंजेक्शन कैसे करनी है डेटा सोर्सेज से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आईओटी सोर्सेज तो रियल टाइम में कंटिन्यूस डेटा जनरेट कर रही है। एक वीडियो कैमरा है, वो वीडियो कैमरा आपका कंटिन्यूस डेटा जनरेट कर रहा है, उसको स्टोर करना और उस पर वीडियो एनालिटिक्स परफॉर्म करना। अगर आपकी इमेज आ रही है, मुख्तलिफ कैमरा स्नैप लेके आपके वीडियो डाल रहा है, या आपका एक थर्मोकपल लगा हुआ है, वो टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंस कर रहा है और उसका डेटा आपके पास कंटिन्यूसली आ रहा है। तो अब ये डेटा की मुख्तलिफ टाइप, अगर आप मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर मैं कैमरा ऑन करते हैं तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर हम एसएमएस कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, क्यू एंड ए सेशन के अंदर या चैट हो रहा है, तो ये सारी चीजें टेक्सचुअल फॉर्म में स्टोर हो रही हैं। तो डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? डेटा इंजीनियर की। कि डेटा ने उसकी पाइपलाइन क्रिएट करनी है फ्रॉम द इंजेक्शन प्रोसेस के सोर्स से आएगा कैसे, वो किस तरीके से प्रोसेस होगा, उस पर इंटरनली एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, अगर वो कॉम्प्रेस फॉर्म में स्टोर करना है तो कॉम्प्रेशन की टेक्निक क्या होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा बेनिफिट एडब्ल्यूएस का क्या हो गया कि जब आप कॉम्प्रेस करके रख देते हैं डाटा को, जैसे अगर सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड फाइल, एक्सेल की नॉर्मली हम स्टोर करते हैं, उसमें अगर डेटा आपके पास मौजूद है तो उसको डेटा को मैं अगर जिप कर देता हूं और जिप करके मैं एक्सेस करता हूं, तो नॉर्मली क्या होता है, क्या आप एक्सेस कर सकते हैं जिप करके? आपको अनजिप करना पड़ता है। लेकिन एडब्ल्यूएस आपको अलाउ करता है वो डायरेक्टली उसकी इंटरनल मैनिपुलेशन जो है, क्यूरी जो आप एसक्यूएल की अगर क्यूरी लिख रहे हैं, जो आप सिलेक्ट करके जो भी आप टेबल्स के उसके अंदर फील्ड्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं और उसमें अनकॉम्प्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से और सर्विसेज हैं, एथीना की सर्विस है आपके पास इंजेक्शन के लिए, काइनेसिस की सर्विस, काइनेसिस की पूरी फैमिली है, वो उसकी फिर सर्विसेज की डिटेल इस पूरे डाटा इंजीनियरिंग के हम डिटेल टेक जो है वो डिस्कस करते हैं 13 मॉड्यूल्स के अंदर। जो इसमें बेसिकली एडब्ल्यूएस की मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस एडब्ल्यूएस एकेडमी में जो ऑफर होती हैं, जैसे यहाँ पे आपको ट्रैक्स नजर आ रहे होंगे, सबसे पहले क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन, उसके बाद 3 स्ट्रीम्स आ जाती हैं आपकी, आर्किटेक्ट, ऑपरेशन एंड डेवलपर। तो डेवऑप्स इंजीनियर नॉर्मली हम बहुत ज्यादा डिमांड में होता है, जिसकी बेसिकली 2 स्ट्रीम्स का मर्जर होता है, डेवलपर एंड ऑपरेशंस। तो अगर आप डेवलपर हैं और आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप ऑपरेशन साइट्स को, डे टू डे वर्किंग को भी देख सकते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर डेवऑप इंजीनियर इज द मर्जर ऑफ ऑपरेशन एंड डेवलपर। एसोसिएट लेवल पे आपकी जो है वो सिसऑप और डेवलपर की सर्टिफिकेशन और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, एंड देन यू गो फॉर द प्रोफेशनल लेवल। सो प्रोफेशनल लेवल पे आपकी 2 सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। फिर स्पेशलिटी में आ जाता है आपके पास एडवांस नेटवर्किंग, बिग डाटा, डाटा एनालिटिक्स, एलेक्सा बिल्ड, एलेक्सा for the you can say that AI based solution for machine learning, security। तो ये सारी आपकी एडवांस लर्निंग सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं जिनके एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, हम AWS क्लाउड से इंटरेक्ट कैसे करते हैं? 3 तरीके से, मैनेजमेंट कंसोल, CLI एंड SDK। बेसिकली क्या होता है, एक एपीआई पीछे रन कर रही है इस क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं अपनी रिसोर्सेज को जो हमने क्लाउड पे क्रिएट की हुई है, चाहे वो वर्चुअल मशीन्स हैं, चाहे वो स्टोरेजेस हैं S3, या कोई डेटाबेस है। ठीक है, तो इसका पूरा जो बेसिकली आपका जो डेवलपर है वो इन 3 तरीके से ही एक्सेस करता है क्लाउड को, किसी भी वर्किंग के लिए जो कि उसको अपने कंपनी के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको परफॉर्म करना है। तो CLI के मुख्तलिफ टूल्स भी हम यूज करते हैं, पावर शेल यूज करते हैं, नॉर्मली जो CLI प्रॉम्प्ट अवेलेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको यूज करते हैं, वरना सर्वरलेस एप्लीकेशन मॉडल को हम यूज करते हुए एक्सेस करते हैं, या AWS एम्पलीफाई एक एप्लीकेशन है जो कि कोडर यूज करते हैं। इसके अलावा Cloud9 की एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ डेवलपर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट होके वो अपना एक्सेस कर सकते हैं किसी रिसोर्स को। जो एसडीके की सपोर्ट मौजूद है उसमें आपके पास AWS एसडीके मुख्तलिफ लैंग्वेज, यू कैन सी हियर C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, .NET, PHP, पाइथन, रूबी, सबकी सपोर्ट मौजूद है। इसी तरीके से आपके पास मोबाइल के लिए एंड्रॉइड, iOS, .NEट, Xamarin, सबकी सपोर्ट मौजूद है। आईओटी के हवाले से आर्डिनो यूनो, C++, एम्बेडेड सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इन सब की भी सपोर्ट आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब ये जो आर्किटेक्चर होता है AWS का, इसको हम सबसे पहले बनाना
सीखते हैं इस कोर्स के अंदर, या AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर जो होता है, कि किस तरीके से हम आप उसमें चीजों को कनेक्ट करते हैं। हमारा प्राइवेट सबनेट क्या है, पब्लिक सबनेट क्या है, गेटवे की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, VPC क्या होता है, रीजन की अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। VPC हम कह सकते हैं कि जैसे आपका एक प्लॉट आपने बुक कराया है किसी एक शहर के अंदर, तो वो शहर बेसिकली आपकी मिल्कियत नहीं है, आपका वो प्लॉट आपकी मिल्कियत है। तो AWS इज द ओनर। AWS आपको सबसे पहले जो है वो पूरी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर है। उसने फिर रीजन्स में डिवाइड कर दिया 32 रीजन्स के अंदर, और उसके अंदर फिर आपने एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना लिया जो कि आपकी अपनी मिल्कियत हो गया। यानी कि अब वो आपके कंट्रोल में है, उसमें AWS का एम्प्लॉय भी एक्सेस नहीं कर सकेगा अगर आप चाहेंगे। आपने अगर डिनाई कर दिया कि कोई भी पब्लिकली एक्सेस नहीं करे, आपका प्राइवेट क्लाउड है, तो उस प्राइवेट क्लाउड के अंदर, प्राइवेट सबनेट के अंदर सिर्फ आप एक्सेस करेंगे, या जिसको आप परमिट करेंगे वो एक्सेस करेगा। तो वो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी या सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर एक्सेस करने की। आउटसाइड तमाम सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताया था, ज्वाइंट शेयर मॉडल है, ज्वाइंट शेयर मॉडल के अंदर जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। तो ये इस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अब फिर ये मुख्तलिफ सिंबल्स यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको, जो कि रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन्स। EC2 हम कहते हैं, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। देन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज, फाइल स्टोरेज है। RDS इज द मैनेज सर्विस फॉर द डेटाबेसेस। तो डेटा स्टोरेज शुरू में अगर आप देखेंगे तो आपके पास राउट 53 की जैसे DNS की सर्विस है, राउट क्लाउड फ्रंट अमेजोन की, ये सारी सर्विसेज जो हैं बेसिकली आपको पढ़ाई जाती हैं क्लाउड फाउंडेशन के अंदर, ताकि आप फेमिलराइज हो सकें AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर आप सॉल्यूशन बिल्ड कर सकें। किसी भी जैसे फेसबुक का पूरा सॉल्यूशन जो है वो AWS क्लाउड के ऊपर आप डेवलप करें। और इसी तरीके से आपका कोई और एप्लीकेशन है, कोई कैफे की एप्लीकेशन है, कोई भी आपकी हॉस्पिटल की एप्लीकेशन है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप किस तरीके से बनाए। तो ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का बेसिकली बेसिक काम होता है किसी भी आर्किटेक्चरल डिजाइन को बनाना। अब हम डेटा की अगर बात करते हैं तो 2022 में ये स्टेटमेंट AWS डेटा एनालिटिक्स सर्विस के हवाले से दी गई कि 2026 तक हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना 45% ऑफ द इन्वेस्टमेंट कर रही है डेटा के ऊपर, टू बिकम अ डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। अब डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो कि डेटा को एज अ एसेट कंसीडर करती है। डेटा को जब ऑर्गेनाइजेशन एसेट के तौर पे कंसीडर करती है, वही सक्सेसफुल मॉडल है। यूनिलीवर ने 300% ग्रोथ करी है विद द हेल्प ऑफ द डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट इन देयर लॉजिस्टिक्स। तो इस तरीके से मॉडर्ना और फाइजर को आप देख चुके हैं कि 10 साल का काम उन्होंने 1 साल में कर दिया। ड्रग उन्होंने डेवलप कर दी विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग विद द AWS क्लाउड। तो ये जो आपकी फैसिलिटी है AWS की, ये मल्टीपल कंपनीज उससे जो एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, वो ड्यू टू द रिजल्ट्स which they are getting, they are investing more and more money into this domain of data engineering and data analytics, and you can say that different kind of data handling functionalities. So data engineering with AWS is very important for the you can say data analysts, data scientists, machine learning engineers, ELT developer. So all of them must understand that how to actually get the insight of the data. अगर डेटा आपके पास बहुत वॉल्यूम में कंटिन्यूसली आ रहा है, उसके अगर मेरे पास लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का ओनर हूं जिसकी 100 ब्रांचेस हैं। अब 100 ब्रांचेस का सबका मुझे अपने डैशबोर्ड पे एक शॉर्ट व्यू चाहिए कि वो अगर वो 100 ब्रांचेस दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में है। मैं खुद बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, और मेरी एक ब्रांच जो है वो बहरीन में, दूसरी UK में है, तीसरी जो है वो टोक्यो में है। तो अब इन रीजन्स के अंदर मुझे हर कंपनी से मैं क्वेश्चन करूं, हर रीजनल ऑफिस से, कि मुझे अपना रिपोर्ट दो, और क्या सेल्स हुई, कितने क्लाइंट्स आए, क्या आपकी आउटकम है, वो सारी चीजें मुझे एक डैशबोर्ड पे मिल जाए। तो ये फैसिलिटी सिर्फ क्लाउड देता है विद द हेल्प ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। आपने पाइपलाइन क्रिएट कर दी, वो डेटा लेक्स के अंदर जब डेटा आ रहा है हर किसी का कंटिन्यूसली, आप रियल टाइम में उसको प्रोसेस करते हुए उसको इनसाइट दे रहे हैं, उसको किबाना या क्विक साइट के थ्रू आप उसको विजुअलाइजेशन दे रहे हैं अपने CEO को। तो ये चीज इस वक्त मार्केट की डिमांड है कि आप किस तरीके से अक्रॉस द ग्लोब आप बड़ी कंपनीज को हैंडल कर सकते हैं। और जो जो काम महीनों में होता था कि यहां से रिपोर्ट जाएगी, वो ईमेल होगी, डॉक्यूमेंट अटैच होगा, वो डेटा यहां से एंटर हुआ और वहां उनके डैशबोर्ड पे अपडेट हुआ। तो दैट इज द बेसिकली यू कैन से दैट एडवांटेज ऑफ द डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा पाइपलाइनिंग के। डेटा को प्रॉपरली जो है वो इंजेस्ट करवाते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, प्रोसेस करते हुए आपने विजुअलाइज करवाना है। ये पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा इंजीनियर की, और यही इसी पे बेसिकली टास्क है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि आप डिसीजन लेते किस तरीके से,
कि आपकी एक हैबिट चेंज हो चुकी है। पहले आप पूछते थे कि लेट्स सपोज मुझे रेस्टोरेंट पे जाना है फास्ट फूड के लिए, कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं अगर किसी नई जगह लेट्स सपोज फैसलाबाद गया हूँ, तो फैसलाबाद में मुझे नहीं पता अगर कौन सी अच्छी लोकेशन है, तो मैं लोगों से पूछूंगा कि वहां के कोई अच्छे जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, मैं उनसे पूछूंगा यार कोई अच्छी जगह बताओ खाने के लिए। अब क्या हो गया, आप फौरन फेसबुक खोलते हैं, आप फौरन फूड पांडा खोलते हैं, आप फौरन जो है वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप रेटिंग देखते हैं, उसकी रैंकिंग देखते हैं, लोगों के कॉमेंट्स देखते हैं। तो आप किस पे डिपेंडेंट हो गए? आप डिपेंडेंट हो गए क्लाउड के ऊपर। उसमें जो अवेलेबल डेटा है, लोगों ने जो रेटिंग करी हुई है, रैंकिंग करी हुई है, फीडबैक दिए हुए हैं, तो दैट मेक्स योर डिसीजन, दैट इम्पोज, दैट एक्चुअली मेक योर माइंड टू टेक द डिसीजन। वेयर कैन आई फाइंड यूज चाइल्ड बाइसाइकिल? अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली कहां जाएंगे आप जाएंगे एप्लीकेशंस की तरफ, आप जाएंगे सोशल मीडिया की तरफ। तो वहां से जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? क्लाउड से आ रहा है। तो ये इसके लिए डेटा इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टार्टर्स शुड आई पिक फॉर माई फैंटेसी फुटबॉल टीम? विच टाइप ऑफ जॉब शुड आई परस्यू? लिंक्डइन, आप डालते हैं डेटा, अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं, वहीं से आपका जो इस वक्त हायर करना चाह रहा है एम्प्लॉयर है, वो आपकी डेटा को देखते हुए आपको वो इन टच करता है, कांटेक्ट करता है, आप ओपन करते हैं अपने आप को फॉर द न्यू जॉब। तो इस तरीके से जो जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहां से आ रही है? जो काम आपने डेटा डाल दिया वो डेटा हमेशा रहेगा, डेटा कांट बी डिलीटेड। डेटा को हमेशा हम कहते हैं डेटा मस्ट बी, डेटा इधर एक्टिव और इनएक्टिव। जब डेटा एक्टिव आपने रख दिया तो उस डेटा को आपने यूज कहां कहां करना है, उस डेटा से क्या क्या इंसाइट्स ले सकते हैं। डेटा को हम मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हाट शुड आई पे फॉर दिस होम? तो प्राइस, जाहिर सी बात है, जब आप परचेज करने जाते हैं तो आपको अगर फीडबैक मिल जाता है कि इस वक्त जो आपकी रियल एस्टेट की मार्केट है बहुत नीचे जा रही है, तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल सुबह की एक न्यूज में पढ़ रहा था कि बैरिया में जो है वो रेंट की प्राइस 60,000 से कम होकर 40,000 पे आ गई है। तो दैट मेक्स द ओवरऑल सेंटिमेंट। अब वो सेंटिमेंट जो है वो लोगों को गाइड करता है कि अब मुझे रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है। तो लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी चल रही है, कौन सी कंपनी ऊपर चल रही है, कौन सी कंपनी नीचे चल रही है, फ्यूचर में किस स्टॉक के अंदर ज्यादा चांसेस हैं बूस्ट होने के। तो वो सब चीजें किससे मैनिपुलेट हो रही है? डेटा से। तो डेटा इंजीनियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड विच ऑफ दिस कस्टमर ट्रांजेक्शन शुड बी फ्लैग्ड एज फ्रॉड? आपकी अगर एटीएम कार्ड यूज हो रहा है रात को 3 बजे और आपने कभी जिंदगी में यूज नहीं किया उसको, तो दैट इज अ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। वो फौरन आपको अलर्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि इज इट यू और नॉट। तो वो आपकी जो डिटेक्शन है वो ऑटोमेशन हो रही है। कोई कोई पीछे जो है वो स्क्रिप्ट लगा हुआ है, कोई लैम्डा फंक्शन चल रहा है, जो फंक्शन एज अ सर्विस के तौर पे मैंने आपको बताया। जैसे ही वो एनोमली डिटेक्ट हुई, वो एनोमली को फौरन आइडेंटिफाई करते हुए उसने ट्रिगर फायर कर दिया और जो मैसेज है वो आपके पास डिलीवर हो गया। विच वेब पेज डिजाइन लीड्स टू द मोस्ट कंप्लीटेड सेल्स? तो आप देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, अगर वेब इंजीनियर है और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ डिजाइन हैं, इन डिजाइन में सबसे ज्यादा यूआई यूएक्स के हवाले से यूजर इंटरफेस जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, उस पर ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, सेल्स प्रमोट हो रही हैं, तो उसके हिसाब से आपको कंपैरेटिव एनालिसिस में हेल्प करती है। विच पेशेंट्स आर मोस्ट लाइकली टू हैव अ रिलैप्स? अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट हो गई वो दोबारा रिलैप्स कंडीशन की तरफ जा रहा है, तो वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे? डेटा विल गाइड यू कि उसने कौन सी ऐसी हैबिचुअल, जैसे लेट्स सपोज डायलिसिस का पेशेंट होता है, उनको कहते हैं भाई आपने इतना पानी का इंटेक करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अगर वो 2 लीटर से ज्यादा कर लेता है तो वो फौरन जो टेस्ट आता है वो बता देता है कि जी, वो जब लैब में जाता है वो कहते हैं जी आपने ज्यादा पानी लिया है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ज्यादा ट्रेसेस मिल रहे हैं, अब हमें जो डायलिसिस में इशू आ रहा है उसकी वजह से। तो रिलैप्स कंडीशन में वो डाटा इंपॉर्टेंट होता है। जब डाटा आप उसको डायग्नोस करते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आप जब पूरे उसको प्रोसेस से गुजारते हैं, तो आपके पास डाटा आता है, और डाटा जितना क्विकली आ जाता है आपको इनसाइट पता चल जाती है। अगर रिमोटेडली उस पेशेंट के जो इनटेक है उसी को आप मॉनिटर कर रहे हो, जैसे ही वो पानी उसने उठाया बोतल, उस पर ही सेंसर लगा हुआ है कि ये पानी है कितना, उसको आधा लीटर आपने परमिट किया हुआ है कि आपने 2 घंटे में आधा लीटर सिर्फ पीना है, तो वो आधे घंटे से जैसे ज्यादा करने लगे आपके पास अलर्ट आ जाएगा, उसका जो अटेंडेंट उसके पास अलर्ट आ जाएगा। तो अब ये चीजें क्या है, ये बेसिकली आपको गाइड कर रही है कि डेटा से आप क्या क्या कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स अ सिक्योरिटी इशू? तो सिक्योरिटी इशू इस वक्त सबसे ज्यादा साइबर वॉर की कंडीशन में हम साइबर अटैक्स फेस करते हैं। मैंने एक और सर जो सर्टिफिकेशन करी थी सीटीआई, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट, तो आपके पास जो आईओसीज आ रहे होते हैं उनकी डिटेक्शन, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है साइबर अटैक्स और साइबर अटैक्स को काउंटर करने के लिए। तो उसमें भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तमाम पैकेट्स को, तमाम ट्रेसेस को, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको अकॉर्डिंग टू योर
लॉजिक कि किसको रेड सिग्नल करना है, किसको ग्रीन सिग्नल करना है, किसको येलो सिग्नल करना है, किसको ग्रे स्केल करना है, वो आपने डिसाइड करना है। व्हेन इज द ऑप्टिमम टाइम टू हार्वेस्ट दिस ईयर्स क्रॉप। तो ये आपके पास जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईओटी से आपका सेंसर से इनपुट आना है। जैसे अभी डॉक्टर खुर्राम एनएडी के जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बनाया है रिगार्डिंग द जो हमारे लेमन की यील्ड को बढ़ाया और उसके वाटर इनटेक को प्रॉपरली रेगुलेट किया विद द हेल्प ऑफ क्लाउड। तो इस तरीके से हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी यील्ड्स को। या अगर फ्लड आ रहा है तो फ्लड में हम रेगुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना पानी चाहिए, चावल की फसल को कितना चाहिए, गंदम की फसल को कितना चाहिए, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल, अगर हमारा क्लाउड्स पे सेंसर्स के थ्रू डेटा जा रहा है, हमें कौन सी मोटर ऑन करनी है, कौन सा ट्यूबवेल ऑन करना है, वो सारी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं, वो सारी चीजें रेगुलेट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। तो डेटा फाइनेंशियल क्राइसिस में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक मार्केट के हवाले से मुख्तलिफ चीजें कंसीडर होती हैं। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, जस्ट टू गिव यू द आइडिया। अच्छा, बेसिकली डेटा साइंस के Excuse me, अंदर sir. दो। जी जी, यस। Sir, really sorry for interrupting you. Will be a short of time. अगर आपकी प्रेजेंटेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि बकिया जो रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है तो एक दूसरा सेशन हम कमिंग डेज में रखें। तो ये सेशन 1 हो जाएगा, सेकंड सेशन फिर हम 2-3 दिन बाद रखें, तो यहीं से हम कंटिन्यू कर लें अगर वो रहता ज्यादा है, इन दैट केस। यस श्योर। अभी तो हम इंट्रोडक्टरी लेवल से आगे पास ऑन होके डेटा या की साइड पे आ रहे हैं। तो यस ओके सर, श्योर, फिर वी इस तरह कैन करते हैं अरेंज फॉर हम। द सेकंड सेशन। या वी कैन surely अरेंज दैट। हम लास्ट टाइम भी हमने सीरीज ऑफ सेशन किए थे फ्रीलांसिंग पे। तो ओके, वो एक ही सेशन में वो नहीं हो पा रहा था वाइंड अप, तो फिर उसके 5 सेशंस हमने रखे। तो इसी राइट। तरह हम आपका जो ये है तो हम इस तरह करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें काफी क्यूरीज चैट बॉक्स पे आ रही हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि लास्ट 10 मिनट्स में कुछ हम उनके अभी तक जो क्वेश्चंस हैं टिल स्लाइड नंबर 28, तो वो क्वेश्चंस हम उनको वो आंसर करें, श्योर एंटरटेन करें श्योर उनको। रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन जो है तो वो हम सेकंड सेशन कर लेंगे, अगर थर्ड की जरूरत हुई तो थर्ड भी हम अरेंज कर लेंगे। ऑलराइट, श्योर, ठीक, थैंक यू हमजा। ठीक है सर, ओके। चलें, जोया फातिमा, कुड यू प्लीज हेल्प सर, अगर हम क्वेश्चंस वो करें स्टूडेंट से जो हमसे पूछें चैट जी बॉक्स जी, में, तो आखिरी 10 मिनट्स हमारे पास रहते हैं, उनमें हम ये एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है। राइट राइट। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको अगर नजर आ रही होगी चैट के क्वेश्चन एंड आंसर्स का, अगर आप खोलें तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड है। जी जी, आप प्लीज वन बाय वन उनको आंसर करते जाएं। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the important skills required to learn when to become good data analyst? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, प्री रिक्विजिट जो है डेटा एनालिस्ट के लिए, खास तौर पे अगर मैं बात करूं, तो आपने सबसे मेन आपका जो है वो डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग, डेटा की अंडरस्टैंडिंग, डेटा की टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग, डेटा की रिक्वायरमेंट, डेटा की एक्चुअल फाइनल आउटकम, हम कहते हैं जिसे बैक ट्रैकिंग, बैकवर्ड प्रोसेसिंग। यानी कि आपने फाइनली क्या देखना है कि ये डेटा यूज कहाँ पे होगा, डेटा कितना क्रिटिकल है। डेटा को, जब मैंने कहा कि कंपनी या जो डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा को एज एसेट ट्रीट करती है, जब आप किसी चीज को एसेट के तौर पे ट्रीट करते हैं तो आपके जहन में क्या होता है? अगर मैं आपके सामने एक सोने का टुकड़ा रख दूं और एक लोहे का टुकड़ा रख दूं, तो आप फौरन कहेंगे सोने की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से डेटा जब आपके सामने आ रहा है तो डेटा को आपने एज ए ट्रीट करना है कि उसकी एसेट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपने उसको सिक्योर भी करना है, उसको मैनेज भी करना है, उसको हैंडल भी करना है, फिर उससे आउटकम क्या ले सकते हैं, उसके इनसाइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। उनको डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिटिक्स के लिए जब आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि ये डेटा की बेस पे हम हर चीज को, अगर पाकिस्तान आईएमएफ से कोई वो करता है, मुआहदा करता है, एक एक परसेंटेज बढ़ती है, उसका अगर हमें इम्पैक्ट पता हो कि ये इम्पैक्ट अगर हम 2% फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं या हम बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, तो उससे कौन कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट होंगी, तो वो डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो वी कैन टेक अवर डिसीजन। जो कि इंटरनेशनल हर कंट्री के अंदर एक थिंक टैंक होता है जिसके पास ये डेटा के मॉडल्स मौजूद होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स मौजूद होते हैं। वो देखते हैं कि अगर हमें 0.1 इंक्रीज करनी है तो इससे कौन कौन सी जो जो इंडस्ट्री है वो अफेक्ट होगी, कौन सा रॉ मटेरियल अफेक्ट होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी अफेक्ट होगी। तो डेटा एनालिस्ट का काम यही है, बेसिकली उस डेटा से इनसाइट्स निकालना, उस डेटा को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी वैल्यू और उसके एसेट्स को अंडरस्टैंड करना। अगर आप ये अपनी स्किल्स के हवाले से बात करें तो डेटाबेस, क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग, क्लाउड फंडामेंटल, अगर आप क्लाउड फंडामेंटल कोर्स कर लेते हैं तो दैट इज एसेंशियल, दैट इज प्री रिक्विजिट फॉर द डेटा इंजीनियरिंग इन एडब्ल्यूएस का। आपने क्लाउड प्रैक्टिशनर जो फाउंडेशन है वो लाजमी किया हुआ। इसी तरीके से आप अगर आगे मजीद डेटा एनालिस्ट की साइड पे जाते हैं तो डेटा एनालिस्ट नॉर्मली डील विद द स्ट्रक्चर्ड
फॉर्म ऑफ, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है उससे काम कर रहा होता है, यूजेस प्रोग्रामिंग लॉजिक टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके कंसिडरेशन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान इज नॉट इन द रीजन टू एक्सेस Amazon Cloud9 सर्विसेज, एक सो हाउ। किसने पूछा डिफरेंस? जी 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 सॉरी, आप पढ़े। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, पाकिस्तान इज नॉट इन द रीजन टू एक्सेस Amazon Cloud9 सर्विसेज, सो हाउ कैन वी गेट द एक्सेस। मैंने अभी आपको बताया कि जो AWS एकेडमी है वो उसके थ्रू तो इंटरनली स्टूडेंट को एक्सेस दिया जाता है। इंटरनेशनली जो है वो Cloud9 के ऊपर जब आप एक्सेस करते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी हर चीज में एक्सपर्ट है, प्रॉक्सी के थ्रू एक्सेस करता है, तो दैट इज अनदर इशू। लेकिन ये कि Cloud9 की जो लाइसेंस है, अगर आप लाइसेंस लेते हैं और उसके थ्रू आप फिर एक्सेस कर सकते हैं, वरना स्टूडेंट एकेडमी के स्टूडेंट के तौर पे अगर आप डेवलपर की सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, डेवऑप इंजीनियर के लिए, तो आप Cloud9 को एक्सेस कर लेते हैं। सर इज AWS एक्सेस इज फ्री? अच्छा, AWS एक्सेस का फ्री टीयर भी है और AWS का फिर पेड वर्जन भी है, क्योंकि फ्री टीयर में आपको तमाम रिसोर्सेज, एक जैसे हम कहते हैं कि वर्चुअल मशीन की मैं एग्जांपल दूं तो वो माइक्रो मशीन जो है T2 डॉट माइक्रो आपको फ्री टीयर पे मिलती है। इसी तरीके से स्टोरेज अप टू सम 5 GB के करीब आपको फ्री मिलती है। तो सिर्फ आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर उसमें डालना होता है अकाउंट क्रिएट करते हुए, और उसके थ्रू आप AWS की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। एकेडमी में आपको फ्री मिलता है जब आप एकेडमी में रजिस्टर्ड होते हैं फॉर द पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर लैब। कैन वी हैव सम एग्जांपल रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग? यस श्योर। जो यासिर अशरफी साहब ने पूछा है कि सिविल इंजीनियरिंग में देखें, इस वक्त मैंने आपको जब मिक्स रियलिटी की एग्जांपल दी, आपको मैंने वर्चुअल रियलिटी में डेटा की इंपॉर्टेंस दी। अ, अगर आपको यहाँ पाकिस्तान में मैं एग्जांपल दूं कि जितने हमारे डैम्स हैं, कौन से डैम में कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं, कितनी जो है वो आपके पास क्रैक्स आ गए हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, किसी ब्रिज के अंदर, किसी, वो अगर आपके पास डेटा आ रहा हो तो एज अ सिविल इंजीनियर यू कैन इजीली परफॉर्म द मेंटेनेंस टास्क, प्रिवेंशन ऑफ द इंसिडेंट्स। जैसे अभी रेलवे ट्रैक के साथ हुआ, तो हम अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है कि ट्रैक जो है डिटोरिएशन कंडीशन में है, वहां पे प्रॉपर वाइब्रेशन आ रही है जब गाड़ी गुजर रही है उसके ऊपर से, तो अगर हमारे पास ये डेटा अवेलेबल होता है वी कैन प्रिवेंट दैट इंसिडेंट। तो सिविल इंजीनियरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से काम कर सकते हैं, और जो कि डेटा से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत से इंसिडेंट्स को या एक्सीडेंट्स को। Sir, I am currently taking the IBM course for data science. I am in complete beginner, finishes up BS Sociology from VU. Should I take this AWS courses? I planned on doing MS in data science and quantitative. So yes, sure, you can do that. क्योंकि IBM क्लाउड की अपनी सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की अपनी सर्विस है, AWS। अभी मैंने सर्विसेज पे देखे आया नहीं हूँ डेटा के हवाले से, जैसे मैंने थोड़े से नाम लिए थे यहाँ, काइनेसिस, किवाना, या आपके पास दूसरी सर्विसेज क्विक साइट। अब ये डेटा के हवाले से AWS बहुत सी मैनेज सर्विस और बहुत सी रेगुलेटरी, जैसे हडूप का प्लेटफॉर्म है, बिग डेटा के हवाले से मुख्तलिफ सर्विसेज, AWS ग्लू है, लेक फॉर्मेशन है। अब वो सर्विसेज जो हैं वो स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर टास्क होती हैं कि आपने काम क्या करना है। तो डिपेंडेंट है कि डेटा कैसा आ रहा है, आपका क्लाउड ट्रेल का डेटा है या आपका वेब जो आपका लॉग है वो वेब सर्वर का लॉग है उससे डेटा आ रहा है, या ह्यूमन जनरेटेड डेटा है या ऑटो जनरेटेड डेटा है। अगर मैं फेसबुक पे कोई कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ, उसको डेटा को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें अलग अलग तरीके से प्रोसेस होती हैं, उनकी स्ट्रीमिंग अलग होती है, और उसके हिसाब से हमें फिर जो है वो AWS एक क्लियर विजन प्रोवाइड करता है। सर प्लीज, एक क्वेश्चन काफी लोग पूछ रहे हैं कि AWS एकेडमी जो है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका आंसर कर दें, अभी लास्ट मिनट है तो प्लीज एक वो अच्छा, लास्ट AWS क्वेश्चन आंसर एकेडमी कर में दें। लास्ट उस पे चला जाता हूँ स्लाइड पे, ताकि जो है वो अच्छा, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आ रहा होगा। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। AWS एकेडमी देखें, जो हम कोर्सेज ओपन ओपन करते हैं, जैसे एज ए इंस्ट्रक्टर में AWS क्लाउड फाउंडेशन और डेटा इंजीनियरिंग फॉर द AWS क्लाउड, ये दोनों कोर्सेज करवा रहा हूँ। सैटरडे के दिन क्लास होती है, इसमें बाहर से कनाडा से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, ओमान से भी हैं, तो ये ऑनलाइन मोड में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और लोकली जो है वो आप फिजिकली यहाँ क्लास होती है ट्यूसडे को इवनिंग में 6 से लेकर 9 बजे तक कराची के अंदर। तो ये जो फैसिलिटी है वो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिजिकली भी कर सकते हैं। और AWS एकेडमी में जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो सर सैयद में एक फॉर्मेलिटी होती है कि फॉर्म आपने फिल करना होता है, ऑनलाइन भी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो AWS का आपका अकाउंट बन जाता है। अच्छा, अकाउंट बनने के बाद जो आपको कोर्स अवेलेबल होगा, जैसे आपने LMS पहले यूज किया और मैंने कैनवस की एग्जांपल दी, कैनवस LMS सिस्टम है जो AWS एकेडमी यूज कर रही है। जैसे नेटअकैड भी यूज कर रहा है सिस्को का, वो भी सेम कैनवस को यूज कर रहा है। तो उस LMS के अंदर आपकी तमाम ट्रैकिंग हो रही होती है, क्विज हो रहे होते हैं। जैसे 13 मॉड्यूल्स डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हैं और क्लाउड फाउंडेशन के अंदर 10 मॉड्यूल्स हैं। तो वो आपने मॉड्यूल का हर मॉड्यूल के एंड में एक नॉलेज चेक होता है। वो नॉलेज चेक जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाते हैं तो आप फाइनली जो है वो एक डिजिटल बैज और फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो AWS की अपनी स्किल बिल्डर साइट भी है, एजुकेट साइट भी है। इसके अलावा जो है वो क्लाउड क्वेस्ट, क्लाउड IQ, बहुत सी साइट्स हैं जिसपे जो है वो आपको लर्निंग मटेरियल मिल जाता है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन जल्दी ही अनाउंस करेंगे। तो उसमें आप दोबारा जो रिमेनिंग की स्लाइड्स हैं सर, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज दोबारा टाइम निकालें हमारे लिए और पार्टिसिपेंट्स को और ज़्यादा इन्फॉर्म करें इस सब्जेक्ट के बारे में। श्योर, थैंक यू। और हम ये रिकॉर्डिंग जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम शेयर कर देंगे, चैट में सारे लिंक्स आपको अवेलेबल है। आपको ये रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगी और नेक्स्ट सेशन हम जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द थैंक यू। सेशन थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।